Hello and greetings of the day, dear students. Firstly, at the outset, I would like to congratulate you on clearing your first year BCom. And now I am sure you're looking forward to taking admission in SY BCom. Due to the changes in the syllabus of SY BCom, your syllabus, your subjects will be shared with you. And I will also be taking you through a step-by-step form filling tutorial wherein you'll be using MasterSoft to take secure admission at Pune College. I am Dr. Fazil Sharif and I shall be walking you through this step by step. The first step is that you need to visit this website, CAMSstudents.newui.mastersoft.erp.in. This link will be posted in the link in the video below the video in comment section. I'll be pinning this link. You can access this. We've also shared this link on your WhatsApp group. Once you click on this link, you will be landing on this page, the page that you see over here. And you'll have to enter your username and your password and the captcha over here and press sign in. In case you don't remember your username or password, there is an option over here, get username and password. Kindly click on this option and you will be directed to fill in your details wherein you can retrieve your password and user ID. Once you enter your details and log in, this is what your web page will look like if you're using a desktop or a laptop. Or if you're using a mobile phone, this is what your screen will look like. If you're using a mobile phone to fill in your form, you'll have to click on these three lines and this menu will appear on your phone. All right. You have to click, if you're using a mobile phone, you have to click on these four lines and this menu will be seen. And here you need to go to online registration. You go to online registrations, you'll have these details that you need to fill, personal, address, photo, sign, exam details, etc., which I will be taking you through quickly in the next few minutes. Currently, I'm using a student's ID and his details, Josef, and I've taken his permission for sharing the screen. I have entered his details and I press sign in. As I said, this is what your page will look like if you're using a laptop or a desktop. Now, when you scroll down over here, you see online registration. Click on personal. Please start from the top. Do not try to fill these details first. First, you need to fill the personal details. So I click on personal. यहाँ पे हुजैफ ने जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम पे the details he had filled, those details are easily visible over here. So यहाँ पे हुजैफ की details जो हैं, these are all there. If there's any changes in details, change in mobile number or anything, you can do it. Now I click save and next. He says, please enter eligibility number. So that means the details that are marked as star are mandatory. So I will scroll down. Passport details में नहीं आएगा, parents details में नहीं आएगा, other details में eligibility number आएगा. So I have already copied Uzaif's eligibility number and I'm pasting it here. आधार नंबर एवरीथिंग हैज टू बी जो भी स्टार मार्क्ड है वो कंपलसरी है जो स्टार मार्क नहीं है वो आप नहीं भरोगे तो भी चलेगा बट स्टार मार्क रेड स्टार इज मैंडेटरी नाउ आई क्लिक सेव एंड नेक्स्ट Indian mobile number must be exactly 10 digits. Now that means there is an error in his mobile number. So I have to scroll up back to personal details. यहाँ पे 91 ऐड किया हुआ है. So I have to delete this 91. तो जीरो वगैरह कुछ नहीं ऐड करना है. आपको डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ आपके 10 डिजिट्स का मोबाइल नंबर डालना है. ठीक है. प्लीज एंश्योर कि आप आपके पेरेंट्स के डिटेल्स यहाँ पे बराबर से एंटर करें. ऑल योर डिटेल्स पेरेंट्स डिटेल्स बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. आपके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर, आपके पेरेंट का फादर का ईमेल आईडी या लोकल गार्डियन, यहाँ पे आप मम्मी मदर का नंबर डाल सकते हैं आप यहाँ पे. ओके. मदर्स नेम एंड मदर्स कॉन्टैक्ट नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो. ओके. सेव. ये हम आगे सेव एंड नेक्स्ट करके आगे एड्रेस पे. सी ना दिस आई हैव रीच्ड ऑन एड्रेस हो गया. फोटो एंड साइन विच इज ऑलरेडी ये ऑलरेडी अपलोडेड आएगा आपका. आपको कुछ भी अपलोड नहीं करना है बिकॉज फर्स्ट ईयर में आपने अपलोड किया हुआ है. नाउ यू हैव टू एंटर द SGPA एंड रिजल्ट. यहाँ पे क्या है आपका सेमेस्टर वाइज, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का. ये आपके रिजल्ट का जो स्क्रीनशॉट आपने निकाला है उसमें ऑलरेडी एंटर्ड है. सो आई विल जस्ट चेक हुजैफ्स डिटेल्स एंड आई एंटर ओवर हियर. Here I have entered his FIBCom NEP Sem 1 का SGPA which is already there in your mark sheet. दो specific SGPA दिए हुए हैं. तो फर्स्ट सेमेस्टर का 7.36 था, सेकंड सेमेस्टर का 7.27 था. आपका आपके मार्कशीट पे क्या है आप उसको देखिए एंड यू नीड टू एंटर दैट. ना रिजल्ट इज पास. अगर पास है तो पास लोगे, अगर फेल ATKT है तो ATKT लोगे, फेल है तो फेल लोगे, वट एवर इट इज. तो पास है तो पास लोगे आप. इसका दोनों केस में पास है तो मैं पास पास लूंगा और ये ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा 7.31 एवरेज. ओके. Now I click save and next.
नाउ आई हैव रीच्ड, एग्जाम डिटेल्स हो गए, नाउ डॉक्यूमेंट्स पे आ गए हम लोग, इसका सब्जेक्ट आएगा पेमेंट एक्सेट्रा। तो नाउ वी आर ऑन डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या अपलोड करना है, यू हैव टू मैंडेटरी अपलोड F5 मार्कशीट। कास्ट कैटेगरी अगर आपको एप्लीकेबल है तो वो भी आपको अपलोड करना है। HSC का अपलोड करना है और अदर अपलोड करना है। द अदर्स आर ऑप्शनल बट F5 मार्कशीट इज मैंडेटरी। ठीक है, तो मैं इसके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे F5 मार्कशीट किया है और अपलोड फाइल में जाके मैंने वो फाइल जो सेलेक्ट किया है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको मैं ऐड करूंगा, द मोमेंट आई ऐड, या डॉक्यूमेंट लिस्ट में आ जाएगी वो, ये देखो ऐड किया मैंने उसको। ये डॉक्यूमेंट लिस्ट यहाँ पे आ गया, ये फाइल अपलोड होगी। अगर आपने को लगता है आपने गलत फाइल अपलोड किया तो यू कैन डिलीट एंड री अपलोडेड, नॉट अ प्रॉब्लम। इसी तरह से आई विल अपलोडिंग हिज अदर डॉक्यूमेंट्स। आफ्टर दिस नाउ अपलोडिंग आधार कार्ड और मे बी आई अपलोड HSC मार्कशीट। तो वो बोल रहा है दिस डॉक्यूमेंट इज ऑलरेडी अपलोडेड फॉर प्रीवियस कोर्स, स्टिल यू कैन अपलोड। अगर अपलोड करना चाहते हो तो ओके दबाओ, नहीं तो कैंसिल करके आप आगे बढ़ सकते हो। बट F5 का मार्कशीट अपलोड करना मैंडेटरी है। F5 का अपलोड हो गया, देन यू कैन क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। Now, this is the part where you will be selecting your subject. This is a very important part. Please pay attention. Before this, let me share with you the list of subjects that are there. Now, this is a list of subjects. ये 1 2 3 4 5 6 है। इसके अलावा देर आर 3 मोर सब्जेक्ट्स विच आर ऑप्शनल, वो हम बाद में सेलेक्ट करेंगे। बट आपके लिए आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद रखना है, इफ यू आर इन A division in F5 BCom, you will go to A division of SI BCom. If you are in B, you will go to B. If you were in C, you will go to C. If you were in D, you will go to SY BCom D. You cannot change your division. A मतलब आप बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस के स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट है। बी मतलब आप कॉस्टिंग के स्टूडेंट है। सी मतलब आप मार्केटिंग के स्टूडेंट्स है। और डी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स है। और ये आपके सब्जेक्ट्स जो हैं अकॉर्डिंगली यहाँ पे दिखाए गए हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा और 3 सब्जेक्ट्स हैं IKS वगैरह, वो आपको हम बाद में बताएंगे। नाउ हुजैफ वाज अ स्टूडेंट ऑफ F5 BCom डिवीजन ए, तो हम उसके लिए अभी यहाँ पे ए ही सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कॉस्टिंग के स्टूडेंट थे, बी डिवीजन के स्टूडेंट थे, तो आप बी सेलेक्ट करोगे। इफ यू आर इन डिवीजन सी इन F5 BCom, तो आप यहाँ पे सी सेलेक्ट करोगे। और अगर आप डी के स्टूडेंट थे F5 BCom में, तो आप डी सेलेक्ट करोगे। नाउ दिस स्टूडेंट हुजैफ इज फ्रॉम ए डिवीजन, सो आई एम सेलेक्टिंग ए डिवीजन फॉर हिम। द मोमेंट यू क्लिक ऑन दैट, ये आपके सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिस्ट होके आ जाएंगे। इसको आपको सेव ऐड करना है। ऐड जब करोगे तो यहाँ पे आपके प्रेफरेंस वन आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, आई शो यू दिस दिस पार्ट अगेन। यहाँ पे आपको जाना है, आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है, अगर ए है, बी है, सी है, जो भी है आपका लास्ट ईयर का डिवीजन, वही डिवीजन सेलेक्ट करना है। अब ये बच्चे का ए है तो मैं इसको ए सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद में मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दूँ, ऐड करूंगा। सेव एंड नेक्स्ट नहीं करना है, सेव एंड नेक्स्ट आपका नहीं होगा अंटिल अनलेस यू ऐड द प्रेफरेंस, राइट। तो पहले आपको ऐड करना पड़ेगा। ये जैसे आप क्लिक करोगे सब्जेक्ट यहाँ से गायब हो जाएगा और डायरेक्टली आप सब्जेक्ट्स यहाँ से गायब हो जाएंगे और यहाँ पे आपका ग्रुप दिखेगा। देखो ऐड क्लिक किया, ये आपका ग्रुप आ गया, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ए, ये आपका ग्रुप प्रेफरेंस आपने सेलेक्ट कर लिया। नाउ यू क्लिक सेव एंड नेक्स्ट। अब आप ए डिवीजन के एडमिशन के लिए आगे बढ़ रहे हो। ये आ गया फाइनल पेज पे। यहाँ पे आपको आपका पेमेंट करना है, कंफर्म करना है और एप्लीकेशन प्रिंट करना है। अमाउंट 200 रुपीज़ है, आप UPI से किसी भी पेमेंट कर सकते हो। जब पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको वो लेके जाएगा, वहाँ पे आपको लॉग इन, आपको QR कोड से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, वट एवर यू वॉन्ट ऑप्शन यू कैन यूज एंड यू कैन मेक द पेमेंट। आई हैव मेड द पेमेंट यूजिंग UPI। देयर पेमेंट हो गया और उसने मुझे लॉग आउट कर दिया। नो प्रॉब्लम, आई विल री लॉग इन अगेन एंड वी विल टेक इट फर्दर फ्रॉम देयर। जस्ट इन केस आपका इस तरह से लॉग आउट हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, कुछ होता है, या आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखाता है, जहां मेरे पास जीपे में आपके पेमेंट हो जाए या आपके ऑनलाइन UPI में पेमेंट हो जाए और रिफ्लेक्ट ना करे आपको पेज पर, तो आपको 24 आवर्स वेट करना है। इनफैक्ट 1 2 घंटे बाद भी अगर आप रीचेक करोगे तो आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। बट मैक्सिमम 24 आवर्स इज व्हाट दे से ऑन द वेबसाइट। सो यू विल हैव टू वेट टिल 24 आवर्स अंटिल यू टेक अ प्रिंट आउट। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप्स जो आते हैं, दैट इज टू कंफर्म द प्रिंट। जस्ट शो यू इन द PPT जो मैंने बनाया था। सी, पेमेंट हो गया, उसके अंदर आपका कंफर्म होएगा एप्लीकेशन, एंड एप्लीकेशन का प्रिंट प्रिंट करना है आपको एप्लीकेशन along with the documents that have already been shared with you। आपको वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको आना है, कॉलेज में आना है एज पर द शेड्यूल। तो व्हेन यू कम फॉर योर एडमिशन यू हैव टू कैरी दीज थिंग्स। अभी जो हमने फॉर्म फिल किया उसका एक प्रिंटेड कॉपी, आपकी 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, आपकी FI BCom की मार्कशीट जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, या फिर अगर हम लेजर शेयर करेंगे तो लेजर का स्क्रीनशॉट आपको लेके आना है।
लेजर अभी तक आया नहीं है, वी आर वेटिंग फॉर द लेजर। इफ बिफोर एडमिशन द लेजर कम्स, विल शेयर द लेजर, आपको उसका स्क्रीनशॉट लगाना पड़ेगा। नहीं तो आपने जो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके एसपीपीयू की वेबसाइट से जो रिजल्ट निकाला है आपका, वो रिजल्ट का कॉपी आपको लेकर लगाना है। और आधार कार्ड का एक कॉपी, और अगर आपका कास्ट है SC OBC या दूसरा जो भी कास्ट है आपका, उसके अंदर अगर आपको करना है तो फिर आपको उसका सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। दूसरा, आपको जो फीस पेमेंट है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स और फीस कितनी है क्या है आपको पता रहे। फॉर ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स द फीस इज 7,990, एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स द फीस इज 6,790। ये फीस आपको वहीं पे ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम, आपको वहीं पे पेमेंट कर, ऑन द डे ऑफ योर एडमिशन, आपका जैसे एडमिशन का फॉर्म स्टाफ कॉलेज का अप्रूव करेगा, आपको वहीं पे खड़े खड़े आपको पेमेंट करना है। आपको लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक करना है और पेमेंट करना है। तो जब आप कॉलेज को आओगे, प्लीज मेक श्योर यू कैरी दिस अमाउंट 7,990 से 8,000 रुपीज फॉर ओपन कैटेगरी एंड 7,000 रुपीज फॉर रिजर्व कैटेगरी इन योर अकाउंट। आप यूपीआई से पे कर सकते हो, या डेबिट कार्ड डिटेल्स एंटर करके पे कर सकते हो, या नेट बैंकिंग से, जैसे भी चाहे आप पे कर सकते हो। मगर आपको पेमेंट तभी करके आपका एडमिशन कंफर्म करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कौन किस दिन आएगा एडमिशन के लिए, द शेड्यूल। तो FY BCom में इफ यू वर इन डिवीजन बी, you will be reporting on 3rd June, that is Tuesday. If you were in FY BCom Division C, you will be reporting on 4th June. If you were in FY BCom Division D, 5th June. If you were in FY BCom Division A, 6th June, that is a Friday. Saturday, Sunday, Monday will be Eid holidays. And if you were in FY BCom Division E, F, G, or H, you will be reporting on 10th of June. वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, EFGH स्टूडेंट्स, आप अभी एडमिशन फॉर्म भरने की कोशिश ना करें। आपका माइग्रेशन अभी बाकी है, प्रमोशन बाकी है, दैट विल टेक प्लेस बाय मंडे और ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को आप अपना फॉर्म फिल करिए, ओनली फॉर FY BCom डिवीजन EFGH स्टूडेंट्स। द रेस्ट ऑफ यू ABCD स्टूडेंट्स कैन फिल द एडमिशन फॉर्म, but students of FY BCom division EFGH should fill the form on Tuesday, that is 3rd। आप 3rd को ट्राई करिए, आपका एडमिशन फॉर्म भरा जाएगा। ऑलराइट, if there is any other query, anything that you want to ask, you can always comment in the below this video. Whenever I get time, I will respond to your query. Plus, we are also having a staff member who is dedicatedly responding to our queries. So जो भी मैसेज आपको ग्रुप पे पोस्ट हो रहे हैं आपके व्हाट्सएप पे, वहाँ पे आप अपने जो टीचर पोस्ट कर रहे हैं उनको आप पर्सनली रिप्लाई कर सकते हो, और उनको अपनी प्रॉब्लम या क्वेरी डिस्कस कर सकते हो। or you can share your query in the comment section below. Very important thing, I will be sharing the link of filling this admission form, and the link from where you can get access to your eligibility number PDF। ये दोनों भी लिंक मैं नीचे पोस्ट करूंगा, और इसके अलावा हम ये लिंक और वो PDF एलिजिबिलिटी का आपके क्लास के ग्रुप पर भी शेयर कर रहे हैं। So you can search from there also, you can search from the link also, you can anyway have access to all these things. Any doubts, any queries, feel free to get in touch or comment in the section below, in the comment section below. And please do not forget to follow and subscribe to my channel for more updates and more videos to be created like these. Thank you so much. This is Dr. Sharif signing off. Bye bye.